السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں گلاب بلوچ۔ اللہ خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیری دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ اور بلیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کریں۔ میرپور خاص پولیس نے ٹنڈو والا یار کے پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اہلکار محکمے میں رہ کر جرائم پیشہ عناصر سے ملا ہوا ہے۔ گرفتار پولیس اہلکار رسول بخش رند کئی ڈکیتیوں میں ملوث ہے۔ پولیس کے مطابق میرپور خاص پولیس نے گرفتار ملزم کو ٹنڈو والا یار کے حوالے کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ ملزم نے ٹنڈو والا یار میں 2 پیٹرول پمپس کو لوٹنے کا اعتراف کر لیا۔ ملزم موٹر سائیکل چھیننے سمیت رازنی کی کئی وارداتوں میں ملوث رہا۔ اس کے ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ آپ کو عام خبر سے آگاہ کرتے چلیں، میرپور خاص پولیس نے ٹنڈو والا یار کا پولیس اہلکار گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اہلکار محکمے میں رہ کر جرائم پیشہ عناصر سے ملا ہوا ہے۔ گرفتار پولیس اہلکار رسول بخش رند کئی ڈکیتیوں میں ملوث ہے۔ پولیس کے مطابق میرپور خاص پولیس نے گرفتار ملزم کو ٹنڈو والا یار کے حوالے کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ ملزم نے ٹنڈو والا یار میں 2 پیٹرول پمپس کو لوٹنے کا اعتراف کر لیا۔ ملزم موٹر سائیکل چھیننے سمیت رازنی کی وارداتوں میں بھی ملوث رہا۔ اس کے ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ چکوال کا ایک اور بہادر سپوت وطن عزیز پر قربان ہو گیا۔ وانا میں شہید ہونے والے صوبیدار ملک ندیم حیدر اوان کو آبائی گاؤں جند اوان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ چکوال کے نوائی علاقے جند اوان کا صوبیدار ملک ندیم حیدر اوان وانا کے مقام پر دہشت گردوں کا جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوا۔ صوبیدار ملک ندیم شہید کی نماز جنازہ آبائی شہر گاؤں جند اوان میں ادا کی گئی اور فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ پاک فوج کے دستے نے شہید کی قبر کو سلامی دی۔ سبز ہلالی پرچم قبر پر لہرا دیا گیا۔ آرمی چیف اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل فیض حمید کی جانب سے قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے بیٹے کے انتقال پر خیرپور میں تعزیت کی۔ دیگر وزراء بھی اس موقع پر مراد علی شاہ کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ خیرپور میں جیلانی ہاؤس پہنچے۔ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ جیلانی کے بیٹے اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ کے بڑے بھائی سید مظفر علی شاہ جیلانی کے انتقال پر تعزیت کی۔ مراد علی شاہ نے اہل خانہ سے افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر تعلیم سعید غنی، مرتضی وہاب، مکیش چاولہ، وقار مہدی اور راشد اربانی بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر حیدرآباد نے دودھ کی مقررہ قیمتوں سے زائد پر فروخت کرنے پر کارروائی کر کے 4 دکانیں سیل کر دیں۔ حیدرآباد میں سرکاری دودھ کی مقرر کردہ فی لیٹر 97 روپے قیمت کے بجائے 100 روپے سے زائد فی لیٹر فروخت پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی ابراہیم ارباب نے مدینہ ڈیری اور ناگوری ملک شاپ، ریشم گلی اور ناگوری ڈیری اور اردو بازار اور دادو ڈیری سرفراز کو 110 روپے لیٹر دودھ فروخت کرنے پر سیل کر دیا۔ کارروائی عوام الناس کی شکایات پر کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ بہت جلد باڑہ مالکان کو تنبیہ کی جائے گی کہ وہ سرکاری مقررہ قیمت پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ بصورت دیگر سخت کارروائی کی جائے گی۔ شیخوپورہ میں فیصل آباد روڈ پر لوڈر ٹرک نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو کچل ڈالا۔ حادثے میں بچہ موقع پر جاں بحق ہو گیا، والدین شدید زخمی ہو گئے۔ شیخوپورہ میں فیصل آباد روڈ نیشنل فیر سٹاپ موٹر سائیکل پر سوار فیملی رفتار ٹرک کی زد میں آ گئی۔ ٹرک کی ٹکر سے بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ میاں بیوی کو شدید چوٹیں آنے پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ فیملی بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل پر سوار بچوں کے لیے کھلونے لے کر شیخوپورہ سے واپس جا رہی تھی۔ سندھ میں مونسون کی 7ویں سپیل نے انٹری دے دی۔ مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، سندھ کے آفت زدہ علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بادل برسیں گے۔
सिंध में मानसून का 7वां स्पेल। हैदराबाद में बादल बरसते ही लतीफाबाद और कासिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। निकासी आब का मुनासिब निजाम न होने के बायस शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बादल बरसते ही बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया, जबकि 65 फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मीरपुर खास में वक्फे से जारी बारिश से बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तंदुजाम में भी बादल जमकर बरसे, जिससे जल थल एक हो गया। सखर, नवाबशाह, कंदकोट, मीरपुर खास, ठट्ठा, मटियारी, बाला और भिटशाह में भी बारिश ने शहरियों की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। बादल बरसते ही मुख्तलिफ शहरों में बिजली भी मुअत्तल हो गई, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम का अहवाल बताने वालों ने मजीद बादल बरसने की पेशगोई की है। सिंध के 20 अजला को पहले ही आफत ज़दा करार दिया गया है। कहीं कुदरत मेहरबान तो कहीं शहरी परेशान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, वहीं मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जलथल भी एक हो गया, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मुल्तान में सरमई बादलों ने डेरे डाल लिए, बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। जंग, चिन्योट, खानेवाल, चकवाल, अटक, लियाकतपुर, खानपुर, अलीपुर और टोबा टेक सिंह में बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। गर्मी के सताए शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। रहीम यार खान, सादकाबाद, जाहिर पीर और घोटकी समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे, जिससे गर्मी की शिद्दत कम हो गई। जेहलम और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। शहर की सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो गईं। इंतजामिया की नाअहली के बायस विहाड़ी के शहरियों के लिए भी अब्र रहमत जहमत बन गई। शहर की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रुझान में भी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। शहर की सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। शेखुपुरा में लाहौर रोड पर खस्ता हाल मकान की कच्ची छत गिर गई, जिसके नतीजे में मलबे तले दबकर 5 अफराद जख्मी हो गए। बादल बरसते ही मुख्तलिफ शहरों में बिजली भी मुअत्तल हो गई, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बादल बरसने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश मुतवक्के है। चकवाल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश ने हर तरफ जलथल एक कर दिया। निकासी आब का निजाम बेहतर न होने की वजह से गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब। चकवाल और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से जहां मौसम खुशगवार हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ नशेबी इलाके भी जेरे आब आ गए, जिसकी वजह से गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। निकासी आब का बेहतर निजाम न होने की वजह से चकवाल की मेन शाहराएं जेहलम रोड, रावलपिंडी रोड, तलागंग रोड, हॉर्न रोड पर पानी जमा होने की वजह से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम का कहना है कि चकवाल शहर में अरसे दराज से सेवरी का निजाम बेहतर न हो सका। हमारी डिप्टी कमिश्नर चकवाल अब्दुल सत्तार एहसानी से अपील है कि वो सीवरेज के निजाम को बेहतर करें, ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके, और महकमा बल्दिया को सीवरेज का निजाम बेहतर करने की हिदायत करें। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, एच न्यूज़, चकवाल। लिया में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया। बादल बरसते ही जलथल एक हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर दुरानी। लिया में मौसम ने अंगड़ाई ली, आसमान पर बादल छाए, फिर बराने रहमत ऐसी बरसी के जलथल एक हो गया। लिया शहर समेत जो कि सिर्फ 1 से 1.5 मुरब्बा किलोमीटर का है और नवाई इलाकों में शहरों की सड़कें और गलियां तालाब के मनाजिर पेश करने लगी। शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंतजामिया से गुजारिश है कि इसका सद्देवाब किया जाए, निकासी का इंतजाम किया जाए। तो अक्सर ये पहले भी होती है, तो इंतजामिया पहले भी लापरवाही का मुजाहरा करती है। तो इस बार इंतजामिया से रिक्वेस्ट है, ये देखिए MM रोड है, तो इसमें हर कराची से मियाँ वाली के हवाले से जाने वाली गाड़ियां भी जाती हैं, तो लिहाजा इंतजामिया से गुजारिश है कि इसकी निकासी का इंतजाम किया जाए। शहर भर समेत नवाई इलाकों का सीवरेज का निजाम ऐसा बैठा कि शहरियों के घरों में पानी दाखिल हो गया, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई भी की गई, मगर म्युनिसिपल कमेटियों की सुस्ती और नाकिस तैयारियों के सबब बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। जिले में भी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया। शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर हुसैन। जेहलम के सबसे गुंजानबाद मशीन महल्ला नंबर 3 की गलियां तालाब और जोड़ का मंजर पेश कर रही हैं। 1 घंटा बारिश होती है और 6-6 घंटे यहाँ पे 3 से 4 फुट पानी खड़ा रहता है, जो कि तालाब का मंजर पेश करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि म्युनिसिपल कारपोरेशन की नाअहली कह ले कि उसके चंद किलोमीटर की दूरी पे वाक़ ये मोहल्ला उनकी नजरों से ओझल है। कई बार अहले इलाका ने दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। 1 घंटे की बारिश की वजह से शहरी जो है अपने घरों में मैसूर हो जाते हैं और कई घंटे वो अपने घरों में मैसूर रहते हैं, वो अपने काम काज पे भी नहीं जा सकते। हमें बहुत परेशानी है जी,
मेरी गली में पानी जो है कोई आना जाना नहीं होता है, कोई गमी खुशी में हम लोग किसी के साथ नहीं दे सकते और ना कि हमारा गमी खुशी में कोई साथ देता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पानी का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि 5-6 गलियां हैं जिसमें हमें आना जाना पड़ता है और नमाज के लिए हमें जाना होता है, उस पर भी नहीं जा सकते। ये मसाइल आज से नहीं, आज से 20 साल पुराने हैं, लेकिन आज तक इस मसले का हल नहीं किया गया और दिन ब दिन बजाय पानी कम होने के इसका जो लेवल है वो ऊपर जा रहा है। अब तकरीबन 4 फुट पानी आता है पानी और आज तक कुछ भी नहीं हुआ इसमें, और ना ही कभी कुछ सफाई करने आया नालों की। हमारी नालियां नहीं, नाले हैं साथ साथ। जेएलएम के हिसाब से गुंजानाबाद मशीन मोहल्ला नंबर 3 की ये गली हाजी सुल्तान और उसके साथ मुलक्का 6 गलियां जो कि 1 घंटा बारिश की वजह से गंदे पानी का तालाब बन जाती हैं, जोहड़ बन जाती हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़या ये मोहल्ला इंतजामिया की नजरों से ओझल है और डीसी जेएलएम से अहले इलाका अपील कर रहे हैं कि इस पे फिलफोर एक्शन लिया जाए और यहाँ पे कुछ सेंट्री वर्कर मुस्तकिल लगाया जाए ताकि शहरियों का, अहले इलाका का इस अजाब से उनकी जान छूटे। कैमरामैन सनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेएलएम। रुझान में वक्फे से जारी बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जिससे मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मजीद जानते हैं मलिक तुफैल की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रात से मूसलाधार बारिश वक्फे से ताज जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है, बिजली का निज़ाम है वो भी धर्म भरम हो गया है। तेज बारिश और काले बादलों ने अगस्त में दिसंबर का समा बना दिया। मूसलाधार बारिश से पूरा इलाका जलथल हो गया है। बारिश के बायस गलियां सड़कें वो तालाब की शक्ल अख्तियार कर गए हैं, जिसमें थाना रोड, अस्पताल रोड, मैरान मार्केट, बनू मार्केट में कई फुट पानी जमा हो गया है। बारिश के बायस नशीबी इलाके वो भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इंतजामिया की जानिब से निकासी आप के लिए किसी किस्म के इंतजाम नहीं किए गए हैं। हालिया बारिशों से ट्रैवल एरिया में रोड कोई सैलाब का खतरा है। दरा जंगी में भी तो यानी आ गई है कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कई एकड़ पर काश्त फसलात को शदीद नुकसान का अंदेशा है। कैमरामैन मलिक उज़ैर तुफैल अहमद के साथ सच न्यूज, रुझान। नालाइक में कोटली मरला के मकाम पर शगाफ पड़ने से डस्का के मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने लगा। 6 रोज से घरों में मैसूर शहरी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं डस्का से नवीद इकबाल। नाला एक में कोटली मरला के मकाम पर शगाफ पड़ने से डस्का के मुतअद्दिद देहातों में तबाही मचाई। नाला एक में कोटली मरला के मकाम पर शगाफ और ओवरफ्लो होने से मुतअद्दिद देहात कोटली मरला, गंजियां वाली, डोगरा वाली, काजी चक बुरी तरह मुतासिर हुए। हर तरफ पानी ही पानी है। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला देहात गंजियां वाली है, जहां आज भी 6 रोज गुजरने के बाद घरों में सैलाबी पानी दाखिल हो रहा है। देहातियों का घरेलू सामान भी पानी की नजर हो गया। 6 रोज से इलाका मकी महसूर है। खुराक की किल्लत का भी सामना है। इलाका मकी हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। डेरों पर बंधे मवेशी भी भूख से मुतासिर हो रहे हैं। मुतासरा इलाके में खुराक के साथ साथ अद्वियात की भी जरूरत है। अगर इमदादी कार्रवाइयां फौरी शुरू ना की गई तो बड़े नुकसान का भी अंदेशा है। कैमरामैन के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। दरिया चनाब बिफर गया। सैलाबी रेला झंग में दाखिल हो गया, जिसके बायस 50 से ज्यादा देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरिया चनाब में तुग़यानी के बायस झंग में दरिया किनारे आबाद 50 से ज्यादा देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं, जबकि हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी मुतासिर हुई हैं। ज़िली इंतजामिया की जानिब से दरिया के किनारे आबाद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई हैं। ताहम इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत माल मवेशियों को लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से 13 एमरजेंसी फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। हालिया बारिशों के बाद दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 7 बेला का ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया, जिससे धान की फसल को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। दरिया चनाब के साथ हेड खानकी, हेड कादराबाद और हेड मराला में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेड खानकी के मकान पर पानी की आमद 2,58,200 क्यूसिक और अखराज 2,50,339 क्यूसिक है, जबकि हेड कादराबाद में पानी की आमद 2,84,000 क्यूसिक और अखराज 2,67,000 क्यूसिक है। दरिया चनाब के साथ बेला का ज़रई रकबा भी ज़ेर-ए-आब आ गया। धान की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। महकमा अनहार के अफसरान का कहना है कि हेड मराला में पानी की सतह कम हुई है। रहीम यार खान में भी जलथल एक कर दिया। शहर के सड़कें, गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हमादुल्ला।
کوٹ سبزل میں بارش نے جھل تھل ایک کر دی. 4 گھنٹے مسلسل بارش نے انتظامیہ کی نااہلی کا پول کھول دیا. شہر کے گلیاں بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. بنیادی مرکز صحت کوٹ سبزل اس وقت تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے، جس سے مریض اور لواحقین شدید مشکلات سے دوچار ہیں. اس موقع پر شہریوں نے کہا پانی ہے یہاں، مریض کیا آئے گا جب راستہ بھی نہیں ہوگا گزرنے کے لیے؟ مریض کا چیک اپ کیا ہوگا؟ مریض آتے ہیں اتنا پانی دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں. یہ جو ہے اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو جلد جلد حل کرے. شہریوں نے کہا جب بارش ہوتی ہے تو ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہماری اعلیٰ حکام اور اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد سے اپیل ہے کہ بارش کے پانی کا فوری تدارک کیا جائے تاکہ مریضوں اور عوام کے مسائل حل ہوں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ، سچ نیوز، کوٹ سبزل. دادو کے علاقے کاچھو کے مکینوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں. 25 روز سے کاچھو کے 300 سے زائد دیہاتوں کا شہروں سے رابطہ منقطع ہے. دادو کے علاقے کاچھو میں سیلاب نے پورے علاقے میں تباہی مچا دی. کیرزر کے پہاڑی سلسلے میں ندی نالوں میں طغیانی کی وجہ سے آنے والے سیلابی ریلے نے کاچھو کو پانی پانی کر دیا. سیلاب میں مال مویشی سمیت سب کچھ بہہ گیا. متعدد کچے مکانات گر گئے، جس کی وجہ سے سینکڑوں خاندان 25 روز سے بے یارو مددگار کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. سندھ حکومت کے دعوے بھی جھوٹے نکلے. نہ تو رابطہ سڑکیں بحال ہوئیں، نہ ہی متاثرین کو کوئی ریلیف مل سکا. رابطہ سڑکیں بحال نہ ہونے کے باعث کاچھو کے 300 سے زائد دیہاتوں کا شہر سے رابطہ کٹ گیا. متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے. جھنکی تحصیل 18 زاری میں دریائے جہلم کا پانی داخل ہونے لگا، جس سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے. رپورٹ کریں گے تصدق عباس. 18 زاری دریائے جہلم کا پانی کوٹنگا، نیک آمد، کامرا، بیگا چوتڑا، منڈے سید، حسن واغا، دھبی بنگوچا میں داخل. کھڑی فصلیں شدید متاثر. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نشیبی علاقے خالی کرانے کے بار بار اعلانات کے باوجود آبادیاں خالی نہ ہو سکی. دوسری جانب دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جس سے مزید آبادیوں کے ساتھ ساتھ فصلوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. کیمرہ مین کنب عباس کے ساتھ تصدق عباس، سچ نیوز، 18 زاری. رحیم یار خان کے علاقے ٹھل حمزہ میں تیز ہواؤں اور بارشوں کی وجہ سے کسانوں کی تیار فصلیں تباہی کے دہانے پر پہنچ گئیں. رپورٹ کر رہے ہیں فیاض احمد. ٹھل حمزہ اور گرد نواح میں تیز ہوا کے ساتھ کبھی موسلا دھار تو کبھی ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری. آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج. تیز ہوا اور بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا، پر کسانوں کی طرف سے کاشت کی جانے والی کماند کی فصل سمیت مختلف فصلات شدید متاثر. تیز ہوا اور روز کی بارشوں کی وجہ سے کسانوں کی طرف سے کاشت کی جانے والی کماند کی فصل کے تنے میں ہر وقت بارشی پانی رہنے سے فصل زمین سے لپٹ گئی، جس کی وجہ سے اوسط پیداوار میں کمی ہوگی اور کسانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اس بارے کسانوں نے بتایا کہ مہنگے داموں تیل سپرے خرید کر کماند کی فصل پر لگاتے رہے. جب فصل تیاری کے آخری مراحل میں آئے تو روز کی بارشوں سے فصلیں تباہی کے دانے پر پہنچنے لگی ہیں. کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ فیاض احمد، سچ ٹی وی، ٹھل حمزہ. سوات میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی. مدین میں سیلابی ریلے میں بہنے والے 4 افراد کی لاشیں تاحال نہ مل سکیں، جن میں سے 3 کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. دیکھیے وقار سواتی کی رپورٹ. بابا مجھے بچا لو، یہ آوازیں اس وقت سنائی دے جب سیلابی ریلی میں بہنے والا بچہ مدد کے لیے باپ کو پکارتا رہا، مگر بے بس باپ مدد نہ کر سکا. یہ ہے سوات میں مدین کی علاقہ تیرات کا پیر جان، جن کی 3 بچے، 1 بہو اور 2 نواسے سیلابی ریلی کے نظر ہو گئے. علاقہ ہے اور 2 لاش ملے گا اور 4 نہیں. بہت پریشان ہوں، ہمارا آدمی نہیں ملے گا، بس یہ غم جاری ہے. سوات کی علاقہ تیرات میں آنے والے سیلابی ریلی میں 12 افراد بہہ کر جان بحق ہو گئے، جن میں سے 4 کی لاشیں تاحال نہ مل سکے. سیلابی ریلی سے متاثرہ افراد میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے فوکل پرسن MPM یا شراپتالینی امدادی رقم کی چیکس تقسیم کیے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ محمود خان کے بھائی اور ڈپٹی کمشنر سوات بھی موجود تھے. 5 لاکھ روپوں کا چیک دیا ہوا ہے. جو شہید ہوئے اور جو زخمی ہوئے ان کے لیے 1 لاکھ روپے ملے. جو جتنی بھی ہماری علاقے میں گھر خراب ہے یا واٹر سپلائی اسکیمیں خراب ہے یا اور کچھ مسئلے ہیں، اس کے حل کے لیے ہم سارے لگے ہوئے. اس علاوہ جو پانی کا جتنا سیٹ اپ تھا پبلک ہیلتھ کا وہ آپ نے دیکھا اوپر سے پائپ ہو گئے ہیں، لیکن آج سے صبح سے وہ لگے ہوئے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل جتنا بھی نیٹ ورک تھا فریش واٹر سپلائی کا گھروں کے اندر اس کو ریسٹور کر. مدین کی علاقہ تیرات اور شاہگرام میں مقامی رضاکار ریسکیو اور ضلعی انتظامیہ لاپتہ افراد کی لاشوں کو
को ढूंढ रही है। ताहम मलबा ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच टीवी, स्वात। मानसून के मौसम में रंग बदलते हैं और मीना बरसते बादल जहां हब्स और गर्मी से मुरझाए चेहरों पर खुशियां बिखेरते हैं, वहीं खेतों और खलिहानों में भी बहार ले आते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद बाटी। रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे, जिसकी अमली शक्ल मानसून के मौसम में खुलकर सामने आती है। जहां देखते ही देखते आसमान पर उड़ती सफेद रंग के गालों जैसी बदलियां, आवारा मिजाज, इधर से उधर नील गूं आसमान पर चमकते सूरज के सामने से झूम झूम कर अकेलियां करती गुजरती हैं, तो सूरज भी शर्मा कर इनकी ओट में चला जाता है। और फिर वक्फे वक्फे से आसमान पर बादल ऐसे कौसे कजा के रंगों में ढलते हैं कि हर देखने वाले यहाँ कुदरत के नजारों में कहीं खो सी जाती है। तो फिर इंसान की जुबान से बेख्तियार ये निकलता है, कोई तो है जो निजाम हंसी चला रहा है। मानसून में रंग बदलता आसमान और बरसते बादल जहां हब और गर्मी से मुरझाए चेहरों पर खुशियां बखेरते हैं, वहीं खेत खलिहानों में एक बार फिर से बहारों के रंग जम जाते हैं। गुलों, शगुफों और कलियों पर आया जोबन देखने वालों की रूह तक को सैराब कर देता है। ऐसे में मरतूब आबो हवा की छाई उलझने भी दम तोड़ देती हैं। हल्की फुल्की फवार के मजे लेता माहौल और भी सहर अंगेज हो जाता है और हर जी रूह की जान में जान आ जाती है। ऐसे में वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश थमती जरूर है, लेकिन बरसना नहीं भूल जाती। इस तरह बारिश और बादलों की आंख मचौली जारी रहती है। फिर आसमान से बादलों की चादर हटाकर सूरज भी खुले खुले कौसे कजा के रंगों से अपनी आंखें ठंडी करता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल, बारिश और हवा ने मौसम रंगीन बना दिया। पंजाब में रिमझिम ने गर्मी से सताए हुओं को सुकून बख्शा है। मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र करम ने समा बांध दिया। चरिंद परिंद चहक उठे तो हरियाली भी मुस्कुरा उठी। मानसून के 7वें स्पेल के बाद मुल्क भर में बारिशों की एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम ने करवट ली। बादल, बारिश और हवा ने माहौल रंगीन कर दिया। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। पंजाब भर में गरज चमक के साथ अब्रे करम खुलकर बरसा। अटक, चकवाल, झेलम, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, बिहाड़ी, मुल्तान, नारोवाल, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, झंग, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब और टोबा टेक सिंह में अक्सर मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम लसबेला, सिब्बी, कोहलू, बाखरान और खुशदार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश होगी। सिंध भर में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद, सांगढ़, ठट्ठा, बदीन और मीरपुर खास में खूब बारिश हुई। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुजवी तौर पर अबरालू, बाज मुकामात पर खुलकर बादल बरसे। दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, हरिपुर, मानसेरा, एबटाबाद, पिशावर, चारसद्दा, सवाबी, मर्दान और कोहाट में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कश्मीर, बारामूला और लद्दाख में भी रिमझिम ने मौसम सुहाना कर दिया। दरियाए चनाब और दरियाए रावी में मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए जिला इंतजामिया खानेवाल ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं अली सरगाना। दरियाए चनाब और दरियाए रावी में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर जहीर अब्बास शिराजी सूरत हाल का जायजा लेने फाजिल शाह फ्लड बंद पहुंच गए, जहां डिप्टी कमिश्नर ने दरियाए चनाब में पानी और बंद पर कायम रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला गुलाम मुस्तफा ने मुमकिन फ्लड के पेश नज़र किए गए इंतजाम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। महकमा इरीगेशन, रेस्क्यू 1112 और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने दरिया में पानी का लेवल मुसलसल मॉनिटर करने की हिदायत की। पानी बढ़ने की सूरत में बेट के इलाके से रिहायशियों का फौरी इनखला मुमकिन बनाने का भी हुक्म दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फाजिल शाह बंद पर 5 रिलीफ कैंप्स मुकम्मल फंक्शनल कर दिए गए हैं, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फ्लड कैंप्स में महकमा सेहत, लाइव स्टॉक, रेस्क्यू 1112, ज़राअत, माल और दीगर महकमों के अफसरान और मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। उनका मजीद कहना था कि फाजिल शाह के मकाम पर इस वक्त दरियाए चनाब से 1,60,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है और मजीद पानी बढ़ने का खदशा है। कैमरा टीम के साथ मियां अली रजा सरगाना, सच न्यूज, कबीरवाला।
सुनामा बाजार में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से दुकानदारों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। सुनामा में मेन बाजार और बुखारी रोड का सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नाकारा हो गया। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से सीवरेज का पानी बाजार और गलियों में जमा हो जाता है। पानी जमा होने की वजह से शहरियों और दुकानदारों को और खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। भाई कई दफ़ा जो है ना हमने रिक्वेस्ट किया है म्यूनसिपल कमेटी में जाके, ये जो गंदा नाला गुजर रहा है ये पानी की वजह से ये ओवरफ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी बाजार में जो है ना ये गटर का पानी होता है। सारे मोहल्लेदार और नमाजी जितने भी गुजरते हैं परेशान हैं। कई दफ़ा कोई कहा गया है लेकिन उसके बावजूद कभी कभी उनका हमला आ जाता है, ऊपर से शापर वगैरह उठा देते हैं, जिसकी वजह से ये चालू हो जाता है। शहरियों का कहना है कि घरों में भी सीवरेज का पानी जमा हो जाता है, जिससे गटर उबलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ म्यूनसिपल कमेटी सिनामा की इंतजामिया का कहना है जल्द बुखारी रोड की सीवरेज सिस्टम का मामला हल हो जाएगा। ये बुखारी रोड सीवरेज का जो मसला है वो कुछ ही दिन से चल रहा है। पहले ये मसला नहीं था ये, तो इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इस वजह से है कि सीवरेज के हमने जो है वो सिस्टम को थोड़ा चेंज किया है, उसकी रुख को चेंज किया है, जिसकी वजह से ये हाइट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। इंशाल्लाह जल्द ही इस मसले को हल कर लिया जाएगा। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू और म्यूनसिपल कमेटी सिनामा के अहकाम से मुतालबा किया है कि बुखारी रोड का सीवरेज का मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल किए जाएँ। असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू और म्यूनसिपल कमेटी सिनामा के आला हुकाम को मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द नाले की सफाई कराई जाए ताकि यहाँ का सीवरेज का निज़ाम सही हो सके। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। आगे बढ़ें और बात करें बढ़ती महंगाई की, तो अशिया खुरोनोश और महंगी होने से आवाम ज्यादा सख्त परेशान हैं। आटा, चीनी, दालें, मसाला जात, सब्जियां और फल शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। देखते हैं जवाद रजा वट्टू की ये रिपोर्ट। महंगाई के तूफान ने हर आदमी को परेशान कर रखा है। अशिया खुर्दनोश, सब्जियां और फलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने आवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। आटा, चीनी, दालें, घी, सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से बाहर हो चुके हैं, जिस पर शहरी मायूसी का शिकार हैं। बहुत ज्यादा फल, सब्जियां, फ्रूट, जी चीज भी ला लो, सब्जी कोई जी आम तो आम सब्जी ला लो 30-40 रुपए होंगी सी, वो भी 100 रुपए किलो मिल रही है। सेब आजकल 40-50 रुपए किलो होता सी, वो 100 रुपए तो घट हो कोई चीज नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, दालें, आटा, चीनी, इन चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा हैं। ये ख़रीदारी हमारे बस में नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील है कि रेट्स कंट्रोल किए जाएं और महंगाई कम की जाए। हुकूमत ने महंगाई कम करने के बुलंदोबांग दावे तो किए थे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खबर देंगे कमालिया से, जहां रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गड़ों की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया मेन रोड से चुंगी मेकना वाली रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार। रोड पर गड़ों की वजह से शहरियों और राहगीरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इस रोड पर शहर का कदीमी कब्रिस्तान भी वाक़या है। सीवरेज का नाकिस निजाम होने के बायस सीवरेज और बारिशों का पानी भी रोड पर जमा हो जाता है। रोड के अतराफ में कूड़े, क्रिकेट और गंदगी के ढेर से कब्रिस्तान में आने जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, लिंक रोड बाईपास सबसे नजदीक रोड है, जो शहर के पूरे शहर के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा आता है। जब भी कभी बारिश होती है या सीवरेज का पानी बाहर आता है तो लोगों का पैदल गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। पानी काफी ज्यादा खड़ा हो जाता है। साथ ही अटैच कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के अंदर भी पानी दाखिल हो जाता है। काफी अरसा से ये रोड टूटा हुआ है। हमारी आवाम को इतनी इसकी मुश्किलात है, कोई खुदा न खास्ता इधर किसी की कैजुअल्टी या कोई मसला बनता है, किसी का जनाजा का मतलब जनाजा लेके जाना होता है, तो यहाँ के लोग इतने परेशान हाल हैं कि इधर से मोटरसाइकिल तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल होता है जब बारिशें होती हैं इधर। तो ये हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि इस रोड के ऊपर कोई तवज्जो दी जाए। आए रोज रोड पर हादसात होते हैं। मिट्टी और धूल उड़ने की वजह से राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मुतअद्दिद बार आवाज उठाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। आला हुकाम से अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर करवाया जाए ताकि शहरियों और राहगीरों को आने जाने में आसानी हो सके। कमालिया मेन रोड, लिंक रोड, चुंगी मेकना वाली जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। राहगीरों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। बहावलपुर के शहर मुबारकपुर में भी रेलवे फाटक टूट फूट का शिकार है, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मजीद जानते हैं यासिर नाज की रिपोर्ट में।
मुबारक पुरता खान पर मर्चावाला और दीगर कई बस्तियों के सड़क पर रेलवे फाटक नंबर 130 को तकरीबन 2 माह कबल ट्रैक तब्दीली के लिए उखाड़ा गया था, जिसका काम तकरीबन कई हफ्तों से मुकम्मल हो चुका है, मगर मुतलका अफसरान की अदम दिलचस्पी और लापरवाही की वजह से सड़क अभी तक टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक गुजारने के लिए रेल की पटड़ी के साथ लकड़ी के फट्टे बिछा दिए गए हैं, ताहम सड़क न होने की वजह से आमदोरफ्त को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कई कीमती गाड़ियां खटारा हो रही हैं। कोई मरतबा कारें, वैगन और लोडर रिक्शे ट्रैक के दरमियान फंस जाते हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। अहले इलाका ने महकमा रेलवे के आला हुकाम DS रेलवे मुल्तान से फौरी नोटिस लेकर रेलवे फाटक को जल्द से जल्द मुरम्मत कराया जाए। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। आज़ाद कश्मीर को सयाहों की जन्नत कहा जाता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से 2 घंटे की मुसाफत पर मौजूद इंतहाई खूबसूरत सयाती मकाम दिक्खन डना माली अभी तक दुनिया की नजरों से ओझल है। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम शाह। तुंद तेज दरिया, आसमान से बातें करते पर्वत, ताहद नजर फैला हुआ सब्जा और बुलंद बाला सरसब्ज दरख्त, इन तमाम नजारों को यकजा किया जाए तो दिलो दिमाग में वादी कश्मीर का नाम उभरता है। कुदरत के बेपनाह नजारों से सजी कश्मीर की वादियां सयाहों को दावत नजारा देती हैं। इन्हीं मशहूर कुन सियाती जगहों में से एक जगह अपर दक्खन डना माली भी है। अभी तक इस सियाती मुकाम पर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं, जिसकी वजह से यहाँ सियाती सरगर्मियां उस तरह से शुरू नहीं की जा सकती। दुश्वार गुजार, कठिन और पैदल रास्ता तय करने के बाद जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है तो कुदरत की फयाजी इस कदर है कि इंसानी आंखें नजारों को देखकर दंग रह जाती हैं। बुनियादी सहूलियात, सड़क, पानी, बिजली और सेहत की फराहमी से इस इलाके को एक बेहतरीन सियाती मुकाम में तब्दील किया जा सकता है, जबकि मुकामी आबादी को तवानाई के मुतबादल ज़रा फराहम करके जंगलात की बेदरेक कटाई को रोकने के लिए भी इकदाम उठाना इंतहाई जरूरी है। 70 सालों में पहली दफा इसी हल्का इंतखाब से मुंतखब होने वाले वजीर मुस्तफा बशीर इस इलाके को सियाती मुकाम की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के बारे में इकदाम उठा रहे हैं, जो एक खुशाइंद कदम है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोराजात पर भी काम जारी है, जिससे सयाहों की आमदोरफ्त में खातिर ख्वाह इजाफा मुतवक्को है। जन्नत अर्ज़ी खित्ता कश्मीर के बेशतर सियाती मुकामात ऐसे हैं जो अभी तक कैमरा और सयाहों की नजरों से ओझल है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर यहाँ पर बुनियादी सहूलियात फराहम करके न सिर्फ सयाहत को तरक्की दे सकती है, बल्कि मुकामी आबादी को बेहतरीन रोजगार भी फराहम कर सकती है। कैमरा टीम के साथ सैयद नदीम शाह, जहलम वैली, आज़ाद कश्मीर। खबर दें पेशावर से, जहां पेशावर के चिड़ियाघर की फैमिली में इजाफा हो गया। नन्हे मेहमान तवज्जो का मरकज बन गए। बंगाल टाइग्रेस ने 2 बच्चों को जन्म दे दिया। पेशावर के चिड़ियाघर की रौनकें दोबारा बहाल हो गईं। बंगाल टाइग्रेस ने 2 बच्चों को जन्म दे दिया। टाइग्रेस के नन्हे बच्चों को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। बंगाल टाइगर के जोड़े को साउथ अफ्रीका से लाया गया था। वेटरनरी ऑफिसर के मुताबिक टाइग्रेस और नन्हे मेहमान का रोजाना की बुनियाद पर मुआयना कर रहे हैं। नायाब जानवरों के बच्चों का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। पेशावर के चिड़ियाघर में चंद माह में 25 मुख्तलिफ इकसाम के नायाब जानवर बच्चे पैदा हुए। नायाब जानवरों में अरबी हिरन, लाल हिरन, लामा और गोरलाल शामिल हैं। मुगलिया दौर के बादशाहों की पुरकशिश अमारात और बागात से दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं, और बड़े सगीर में सल्तनत मुगलिया के अनमिट नकूश अभी भी मौजूद हैं। मुगल बादशाह जहां से भी गुजरे वहां अपनी आमद की निशानी जरूर छोड़ गए। बकर का तारीखी दिलकुशा बाग अब भी इसकी एक मिसाल है। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर अब्बास। मुगल दौर के बादशाहों की पुरकशिश इमारत और बागात से दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं, और बरसगीर में सल्तनत मुगलिया के अनमिट नकूश अब भी मौजूद हैं। मुगल बादशाह जहां से भी गुजरे वहां अपनी आमद की निशानी जरूर छोड़ गए। भक्कर का तारीखी दिलकुशा बाग अब भी उसकी एक मिसाल है। भक्कर शहर के गरबी जानिब दरिया सिंध के किनारे आबाद तारीखी बाग मुगल शहनशाह शाहजहां की बेटी मेहरुन्निसा ने दरिया सिंध की आबी गुजरगाह के वस में लगवाया। अब जिसे बाद सदोजई कबीला के सरदार मोहम्मद खान सदोजई ने वसअत
दी। शहजादी मेहरुन्निसा ने दौरान सफर इस मकाम से गुजरते हुए एक कुआं भी खुदवाया जिसका पानी बहुत मीठा था। उन्होंने यहाँ काफी अरसा पड़ाव भी किया और बाग लगवाया जिसका नाम दिलकुशा बाग रखा गया। उन्होंने बैठने के लिए 2 तख्त भी बनवाए जिनके आसार अब भी मौजूद हैं। दिलकुशा बाग का रकबा तकरीबन 80 एकड़ पर मुश्तमिल है। दिलकुशा बाग में आम, खजूर, जामुन और दीगर मुख्तलिफ अक़साम के फलदार दरख्त मौजूद हैं जिनमें खजूर नुमाइयां है। ये दरख्त ज्यादातर अंग्रेजों के दौर में लगाए गए थे। बाग में खजूर बसरा अपने जायके और मिठास के बायस इंतहाई मशहूर और मकबूल है। सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद भी दिलकुशा बाग आज भी इलाका भर में सबसे पुरकशिश तफरीही मकाम गिना जाता है। यही वजह है कि आज दिलकुशा बाग की खूबसूरती में इजाफा हो रहा है और सिर्फ शहर में ही नहीं करीबी अजला के शायकीन खसूसन स्कूलों के तलबा और तालबात पिकनिक मनाने की गर्ज से यहाँ आते हैं। दिलकुशा बाग में सियाहों के लिए ग्रासी लान और बच्चों की तफरीह के लिए झूले और खेलों का खातिर खा सामान मौजूद है। मुख्तलिफ मीठी रिवायती बोलियों में परिंदों की चहचहाहट और मशहूर कुन आवाजें यहाँ आने वाले सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। बाग का नज़्म व नस्क महकमा जंगलात और महकमा ज़राअत के पास है। घने दरख्तों और खजूरों से भरे इस बाग में मुगलिया दौर के निशानात को तो महफूज नहीं रखा जा सका, ताहम भक्कर के शहरियों के लिए ये एक उम्दा तफरीह गाह जरूर है। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के हमरा नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी, भक्कर। मंच के बांध से तैयार चारपाइयों का इस्तेमाल आज भी पाकपतन में किया जाता है। ये मंच का बांध पाकपतन में तैयार किया जाता है। ये बांध कैसे और कहां तैयार होता है, जानते हैं चौधरी तारिक की इस रिपोर्ट में। जदीद फर्नीचरों और सोफा सेटों के इस दौर में भी लोग मंच की बांध से तैयार हुई चारपाइयों का इस्तेमाल करते हैं। पाकपतन में इस मंच के बांध को मर्द और खवातीन अपने हाथों की मेहनत से ये बांध तैयार करते हैं। इस बांध को मुख्तलिफ मरहलों से गुजारने के साथ साथ आग के मराहिल से भी गुजारा जाता है जिससे इसकी मजबूती में इजाफा होता है। ਜਿਹੜਾ ਬਾਨ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰਪਾਈਆਂ 'ਚ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਨ 82 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਨ ਵੱਟ ਰਹੇ हैं पूरे पाकिस्तान में। जदीद दौर में भी आज भी लोग इन कदीमी चारपाइयों की रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। मंच के बांध से तैयार चारपाइयों का इस्तेमाल आज भी लोग सकाफत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। आज के जदीद दौर में भी टंडो वाला यार के कारीगर मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, इम्ताज हुसैन की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां दुनिया दिन ब दिन तरक्की के इस मकाम तक पहुंच गई है, वहीं इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी पुराने तौर तरीके बदस्तूर जारी हैं। टंडोलायार में बड़े पैमाने पर सिंध की सकाफत को उजागर रखते हुए मिट्टी के बर्तन बनाने का काम जारी है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इस जदीद दौर में भी टांगों से चरखा चलाकर अपने हाथों की मदद से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। दिन रात की मेहनत के बाद मिट्टी के बने बर्तन को चरखे से निकालकर धूप में सुखाया जाता है। मुकम्मल तौर पर सूख जाने के बाद शहर भर में फरोख्त के लिए भेजे जाते हैं। कोरोना वायरस की वजह से जहाँ दीगर कारोबार मुतासिर है, वहीं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ये मजदूर भी लॉकडाउन के बायस परेशान दिखाई देते हैं। दूर देहातों से लोगों की शहर में आमद न होने की वजह से मिट्टी के बर्तन की फरोख्त शदीद मुतासिर हो गई है। असर तो कारोबार में ऐसे ही पड़ा है, बर्तन बने हुए हैं, बिक्रे नहीं है। भराड़ी में जाते हैं तो लोग परेशान है सारे लॉकडाउन की वजह से, और ये सारा काम जो चल रहा है अल्लाह का शुक्र है, वैसे गुजारा चल रहा है, मगर वो बात नहीं है। हमारा काम रुक गया है, 2-3 महीने हो गए काम रुका पड़ा है, दुकान बंद पड़ी है। अभी कारोबार पे थोड़ा असर पड़ गया है। बस बहुत बाराड़ी से आते हैं लोग, वो लेते हैं। शहर के तो लोग इतने लेते ही नहीं है, ये लेते ही बाराड़ी वाले। मजदूर तबके का मजीद कहना था कि हमें किसी इमदाद की जरूरत नहीं, हम अपनी मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। हुकूमत SOPs के तहत कारोबार खोलने की इजाजत दे ताकि हम मजीद फाका कशी से बच सकें। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलायार। बारिशों से तुगयानी के खर्चे के पेश नज़र कमिश्नर डेरा गाजी खान ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा नवाई इलाके रूद कोही का दौरा किया। रिपोर्ट करेंगे अली रजा।
डेरा गाजी खान में बारिशों से रोद कोही में शदीद तुगयानी के खतरे के पेश नज़र कमिश्नर साजिद जफर डाल ने डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक के हमरा वडोर और रोद कोही का मुआयना किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू समीउल्लाह फारूक और असिस्टेंट कमिश्नर सदर मलिक राशिद नेमत भी उनके हमरा मौजूद थे। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने रोद कोही और वडोर सैफन का जायजा लिया। उन्होंने रोद कोही में पानी की मिकदार और दीगर मामलात का भी जायजा लिया। टोबा टेक सिंह पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डकैती के दौरान शहरी से लूटमार करने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक सिंह नवाही गांव 382 जींबे में डकैती की वारदात करने वाले मुलजमान के खिलाफ पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम जाहिद लतीफ अपने दो साथियों समेत सड़क पर नाका लगाकर शहरियों से लूटमार कर रहा था कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजमान का ताकब शुरू कर दिया। ताकब के दौरान पुलिस ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद मुलजम जाहिद लतीफ को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तर्जमान का कहना है कि गिरफ्तार मुलजम के कब्जे से असला, शहरी से लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुलजम जाहिद लतीफ और इसके साथी डकैती, राहज़नी और कत्ल की मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। इनके ऊपर एक और मजीद FIR दी है। इस आप लोगों के तवज्जो से मैं तमाम लोगों को जो कि इनके मुतासरीन हैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो इनके हाथों आज तक लूट चुका है वो भी टोबा पुलिस से राब्ता कर सकते हैं। पुलिस ने जख्मी मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फरार होने वाले मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त दीजिए इजाजत। मजीद किसी भी खबर के लिए आप विजिट कर सकते हैं सच TV.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।